السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آج کے شو میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے تاریخ کے دو انتہائی اہم کرداروں سے. ایک ہے ہلاکو خان اور دوسرا مستعصم باللہ. سر انہاں دوواں جو ہلاکو کون ہے؟ تمہیں نہیں نظر آ رہا ہے یہ ہلاکو ہے اور وہ مستعصم باللہ ہے. اس کی داڑھی ہے. یہ منگولز کی عام طور پر کوئی گھنی داڑھی نہیں ہوتی، بہت چھوٹی سی داڑھی ہوا کرتی ہے، مونچھیں باریک مونچھیں. تو سر جدو اس ٹگے جنو چنگیز خان بنایا سی وہ تو ایڈی ایڈی داڑھی سی ہمارے شو میں جی. وہ اس لیے کہ وہ سوٹ بہت کر رہی تھی اسے. اچھا یعنی کہ یہ ٹگا ہے. اور تمہاری بات نہیں ہو رہی، اسی کی بات ہو رہی ہے. جب میرے بارے گل کرو میں تھوڑا کو شیپ نہیں کراؤنا ہے. اچھا ہلاکو خان نے شلوار ڈانسراں لی پائی ہے. اچھا جناب، ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا. اس کا جد امجد ایک بہت بڑا ٹرائبل چیف اور ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. اس شخص نے 10 فروری سن 1258 کو صاحب بیٹھے نے میلے چ ٹول ہو جاؤں والے. یار یہ مستعصم باللہ ہے. یہ 37واں اور آخری خلیفہ تھا عباسیوں کا. اس شخص کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ بڑا نفیس اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن بدنصیبی اس کی کہ یہ ہر وقت ہیرے جواہرات اکٹھے کرتا رہتا اور فروئی معاملات پر بحث مباحثہ اس کے دربار کا خاصا تھا. یعنی جس ٹائم پر ہلاکو چڑھ دوڑا اس وقت ڈسکشن کیا ہو رہی تھی اس کے ہاں انٹلیکچوئلز کی، علماء کی، اس دور کے جو ٹی وی اینکرز تھے ان کی، کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ کس طرح گزر سکتا ہے. کوے کو اگر پینٹ کر کے سفید کر دیا جائے تو ہنس برا مانیں گے، کیا کریں گے؟ پھر ٹھیک حملہ کیتا ہلاکو. یعنی کہ اس دور دی پھکیاں گلاں سی کر دے سی. یعنی مرغی کے پنجے اور چونچ کا باہمی تعلق وہ ڈسکس ہوا کرتا تھا. نہ ہور سی پنامہ لیگ ڈسکس کر دے تھے. اس کا ایک وزیر تھا الکمی. واہ. اس نے اس کا بیڑا غرق کرنے میں بڑا رول پلے کیا. وہ اندر سے ہلاکو کے ساتھ ملا ہوا تھا. وہ اسے مشورے دیا کرتا تھا کہ ہلاکو نے آ جانا ہے اور آپ بہت تنگ ہوں گے، آپ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ اسے کہیے، جیسے ہم کرتے ہیں ڈس آرمامنٹ، آج کے دور کی ڈس آرمامنٹ، آپ اپنی فوج بہت کم کر دیں. تو الکمی نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ آپ کے محلات پر ہیرے جواہرات پر اٹھنے والے اخراجات اس قدر زیادہ ہو گئے کہ اب آپ کا بجٹ کاٹنا پڑے گا. تو اس نے کہا جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے تو مزید بجٹ چاہیے، میں تو اور خریداریاں کرنی ہے، میں 4 محل اور بنا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ ہمارا بجٹ سب سے زیادہ کون کنزیوم کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی ڈیفنس. یہ جیسے آج کے حالات میں ہمارے اکثر نیم دانشور اور سیاسی لوگ وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیفنس پہ اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے فلاح و بہبود کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. بھئی تم رہو گے تو فلاح و بہبود ہوگی، اگر تم ہی نہ رہے تو کس کے کام آنا ہے سارا کچھ؟ تو اس احمد نے کیا کیا کہ ڈیفنس بجٹ کٹوا دیا، یعنی 1 لاکھ فوج کو 10,000 پہ لے آیا. ہاں جی. اور وہی الکمی نے کہا جی یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ضرور کریں یہ، کیونکہ ہمارے ایک ایک فوجی کے اندر اتنی قوت ایمانی ہے کہ وہ منگولوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، آپ فکر نہ کریں. تو یہ بے وقوف اس کی باتوں میں آ گیا. اس پوری ایپیسوڈ میں جو انتہائی دلچسپ مکالمے اور ڈائلاگز ہیں یہ وہ ہیں جو ہلاکو آخری دنوں میں مستعصم باللہ کے ساتھ کرتا رہا. چلتے پھرتے اس نے کہا بات سنو، یہ اتنا زر و جواہر تم نے اکٹھے کر رکھے ہیں، اتنا پیسہ اکٹھا کر رکھا ہے، یہ کس کام کا؟ تم نے فوج کیوں نہیں بنائی؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کی مرضی تھی، میں کیا کرتا. اس نے کہا اب جب میں تمہارا سر تن سے جدا کروں گا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ تاریخ کے چند انتہائی مشہور مکالموں میں سے یہ ایک ہے. ارے مستعصم باللہ تو پھر بہت نلائق ہو کہ ایسا ویسا نالائق. اسے جس شخص نے آ کر اطلاع دی کہ جناب ہلاکو کا لشکر جرار آپ کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اس نے کہا تم نے مجھے ڈسٹرب کیا، میرے خیالات کا سلسلہ منتشر ہو گیا، اس کو سزا دی جائے. اچھا جس طرح شکاری اپنے شکار کے ساتھ کھیلتا ہے، جیسے چوہا آگے آگے بھاگتا ہے، بلی اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، کبھی اسے ادھر پھینکتی ہے کبھی ادھر پھینکتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو اس نے اس کا جو حشر کرنا ہے اسے معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح یہ 10-11 روز اپنے شکار کے ساتھ، مستعصم باللہ کے ساتھ روزانہ اسے بلا لینا. اسے کہتا آؤ بیٹھو میں کھانا کھانے لگا اسی کے محل میں. پہلے اسے کہتا میں تمہارا مہمان ہوں. وہ ایسا بے وقوف ہے، وہ سمجھا کہ سچ مچ یہاں یہ سیر و سیاحت کے لیے آیا ہے
तो मैं इसे चंद तोहफे तायफ दे के फारिग कर दूंगा। उस दौर में होता था बड़ा कुछ देना दिलाना जो है ना, उसके बाद ये चला जाएगा, इसने यहाँ रह के क्या करना, ठंडे इलाके से आया, ये गर्म इलाका है। तो जब इसका दिल चाहता ये उसे इस तरह तलब कर लेता था जैसे किसी चपड़ासी को, किसी रनर बॉय को बुलाते हैं, तो कहता यहाँ बैठ जाओ, मैंने खाना खाना है, तुम भी मेरे साथ खाओ। तो कहता अच्छा जी मैं भी खाता हूँ, आप मेरे मेहमान हैं। वो कहता था बैठो बैठो, बातें कम करो और खाना खाओ। तो ये अपने लिए रकाबियों में सालन वालन डालता था, उसको प्लेटों में हीरे जवाहरात भर के दे देता। उन्होंने कहता ले मामा हुण है खाओ। हाँ कि अब ये खाओ क्योंकि तुमने यही अपने लिए इकट्ठा किया। वाह वाह वाह। वो कहता मैं कैसे खाऊं, उन्हें मुझे नहीं पता, इकट्ठे किए तो अब खा के दिखाओ। इसने बगदाद पर जो जुल्म ढाया वो तारीख का स्याह तरीन बाब है। तकरीबन 10 लाख अफराद, 1 मिलियन लोग तहे तेग किए गए। कुछ लोग उससे कम बताते हैं लेकिन अल्टीमेटली फिगर 1 मिलियन तक पहुंचता है। फिर उससे भी ज्यादा जुल्म इसने ये किया कि वहां की ग्रैंड लाइब्रेरी जो उस दौर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पूरी दुनिया में समझी जाती थी, और उस दौर का इंटेलेक्चुअल ट्रेयर कोई और मुल्क मैच नहीं कर सकता था, इसने सारी की सारी दरिया बुर्द करवा दी कि ये है वो इल्म फजल जिसे पढ़ पढ़ कर तुम्हारा ये अशर हो गया। कहते हैं कि दजला का पानी कई दिन तक स्याही की वजह से काला रहा। सर चंगेज खान तो हमेशा आपका फेवरेट रहा है। हाँ जी बहुत ज्यादा। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਸਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ख्वाब 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। और चंगेज खान हर बारी डर जाता सी, यकीन करो। सर इसके बारे में आपकी क्या राय? ये उसके मुकाबले में बहुत मामूली था, लेकिन ये फिलोसोफर उससे बड़ा था। दोनों में बुनियादी फर्क भी आज से कुछ अरसा पहले तक तो ये एक स्प्री पे निकला हुआ था, जिसको दिल चाहा फैंटी लगा दी, जिसको दिल चाहा मार दिया। तो ये तकरीबन उसी ज़ौक़ का हामिल था। इसने अलकमी के साथ जो सलूक किया वो बहुत मुनासिब था। ਕੀ ਕੀਤਾ? अलकमी जो इसके साथ मिला वो वज़ीर गद्दार वजीर था, इसने उसको कत्ल करवा दिया कि तुम अगर अपनी कौम के नहीं हुए मेरे कैसे हो सकते। बहुत अच्छे। ये एक अच्छी मिसाल इसने कायम की। अच्छा जी आते हैं सवालात की तरफ। शुक्र अल्लाह दा तुम याद आ गया। ये बताओ नहीं तो मैंने तो लगता सी आ मैं वायलन भी जाऊं रखी हुई है। यार ये बताओ कि फतह करने के बाद कत्लो गारत करना ये कुछ जरूरी था क्या? तुम्हें किससे खतरा था? असल में ये जो कुछ मैं करता था ना जी, हाँ जी, ये जरा लोगों पे एक धाक बिठाने के लिए करता था। धाक बिठाने के लिए? पहले थोड़ी धाक बैठी हुई थी लोगों पे। लोग सर इन्हें सीरियसली से लेंदे, जुगता करदे सी। जुगते हां जो मक्कू ठप्पे होंदा। और तुम बताओ बेवकूफ शख्स हाँ जी। कि दीगर मशागल में तुम इतने मसरूफ रहे कि तुम्हें पता ही नहीं क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। असल तो जो मेरे सारे दोस्त सन ना वो सारे फिक्के ही सन, फिक्कियां जुगता करते सन। अजे आ सफीना नहीं गया वो भी यार है मेरा। इस तरह फिक्कियां गल्लां करनियां, मतलब मिसालां फिक्कियां कि तेनू समझाना ते जिवें ऊंट नूं रक्शे च बिठाना। ये फीकी तो ये तो बड़ी मजे की है। और इस तरह दे मतलब जेड़ी गल जेड़ा काम हो नहीं सकदा सी वो डिस्कस करदे सी। अच्छा अच्छा हलाकू खा बीच बीच सौ जाता है। लेकिन सर इसको तो लोग बुरे लफ्जों से ही याद करते हैं। गिड़ा है जो मैंने बुरे लफ्जों से याद करता है, ले मेरे सामने। नहीं, जुल्म सितम की वजह से ये जितने बड़े बड़े कॉन्करर्स थे ना, ये सिर्फ एक शुगल के तौर पे इस सफर पे निकला करते थे कि लोगों को ताख्तो ताराज करते जाएं, लोगों को कॉन्कर करते जाएं। भाई सिकंदर से को पूछे पागल के पुत्र तुम्हें मिला क्या यहाँ नहीं, वहां सिवाय मलेरिया के, बीमारी के, गर्मी के और जहर में बुझे हुए तीरों के तुम्हें क्या मिला यहाँ पे? उसी तरह तैमूर लंग भी वैसा ही था। ये मॉडर्न टाइम्स के जो कॉन्करर्स है ना, जैसे हमारे यहाँ ये देखो, ये अमेरिका अपनी फौज वहीं भेजता है जहां तेल मौजूद हो, वहीं भेजता है जहां उसको राहदारी की सहूलत चाहिए हो। सियानी और समझदार कौमें गन बोट डिप्लोमेसी किया करती थी, जैसे बरतानिया था। बरतानिया, फ्रांस, ये जाए ही वहां करते थे जहां इन्हें फायदा हो। अच्छा जी, मुस्तसिम बिल्ला साहब से एक और सवाल करते हैं कि अगर आप बर वक्त हथियार डाल देते जब ये आंधी और तूफान की तरह उठा था मंगोलिया से, हाँ जी, तो उसी वक्त अगर हथियार डाल देते तो अच्छे ना रहते? हथियार डाल देंगे लोग कहते बिल्ला डर गया है। ये तो डरने वाली केड़ी गल है? तो यकीन करो इस शख्स नु मैं और लित्र फेरे बाकी बहुत मारा था। तू मैंने कहा सी कि मैं किसी ने दसांगा नहीं। लेकिन यार तू भी तो फिर बंदे से पुत्र इतना गल करना कोई अच्छी गल तो नहीं ना। इतने लड़ाई लड़ने इकट्ठे रक्शे ते जाना है वापस। ये तो सर ये स्पीड के साथ बगदाद पे आया था। हाँ जी, बड़ी स्पीड, इसको कहते हैं ये आंधी की तरह आया करता था। ये तो कांची किसी ने कहते बगदाद रोटी खोल गई है।
ਸਰ ਇਹ ਹਲਾਕੂ ਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ? हलाकू के मरने से मुतल्लिक एक दिलचस्प वाकया है तारीख में, लेकिन वो इसलिए मशकूक है कुछ कि उसके जो डेज और डेट्स है ना वो टैली नहीं कर रहे। इसकी मौत 1265 में वाकई हुई, जबकि वाकया ये है कि उन्हीं दिनों जब ये बगदाद के ऊपर जुल्म और सितम ढा रहा था तो इसने बड़े मुतकब्बर लहजे में एक दफा सारे सरदारों को बुलाया तो कहा कि अपने खुदा को आवाज दो जो तुम्हें मेरे कहर से बचाए। और इस दौरान ये एक लीमू हाथ में लेकर ना, इसको लीमू निचोड़ के कहवा पीने का बड़ा शौक था, तो लीमू ये बार बार उछालता और कैच करता था जैसे गेंद के साथ करते हैं, और बैठा घोड़े पे हुआ था। तो उसकी ये बात सुनकर तमाम सरदार लरज उठे, लेकिन उस दौर के एक आलिम इमाम यूसुफ, जो बहुत बड़े आइमा में से, हमारी फिका में उनका बड़ा रोल है, इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ जिन्हें साहिबैन कहते हैं, ਵਾਹ ਵਾਹ। तो वो बड़ी बुजुर्गी और पीरी के आलम में बमुश्किल खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के अजाब से डरो, तुम जिसे रिडिक्यूल कर रहे हो, तुम जिसे बहुत इजी ले रहे हो, उसके पास ताकत इतनी है कि ये लीमू जब तुम उछालोगे तो वापस आते आते इतनी देर हो जाएगी कि तुम्हारा इसी दौरान कला कुमा हो सकता है। तो रिवायत यह है कि वो बात सुन के दहल गया और लीमू नीचे गिर गया। ये एकदम लीमू की तरफ लपका, इसका पांव रकाब में फंसा और घोड़ा सरपट भाग निकला। बहुत खतरनाक सा टेरेन था, ये मुख्तलिफ चट्टानों और नोकीले पत्थरों के साथ इसका सर टकराता रहा। ये बहुत देर मफलूज रहने के बाद दुनिया से रुखसत हो गया। ओए ओए। ये अंजाम था उस जाहो हश्म का, उस दहशत और हैबत का, कि जब लोग, यही तो कहते हैं ना कि लोग पागलपने में, ताकत का नशा आपको बाकायदा पागल कर देता ओए। है, जिस तरह दौलत का नशा। इसीलिए ताकत के नशे में सरशार हर हुक्मरान के लिए, हर कौम के लिए, हर मुल्क के लिए ये एक तंबीह है, एक नसीहत है कि उस वक्त इन चीजों का ख्याल रखो, क्योंकि अल्लाह के नजदीक तुम्हारी हैसियत परेकाह से भी मामूली है। घास की एक छोटी सी जो पत्ती है उसकी हैसियत तुमसे ज्यादा हो। Khotin Hazrat will take a break, stay with us. Welcome back. Khotin Hazrat, इब्न बतूता में आज हम आपको लिए भी बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल है। इसके बारे में 2014 तक के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 8 पायलट्स हैं जो इस कदर खतरनाक रनवे पर उतरने के लिए सर्टिफाइड है। तो सर एयरपोर्ट ही किसी और जगह बना लेना चाहिए था। किसी और जगह से मुराद जाहिर है किसी और शहर में, 500 मील के फासले पर है दूसरा शहर। ओ ये इलाका हाई, जी अक्सर टीवी पे देखते हैं, कुछ चीज तो छड़ी है। जिस तरह जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इस तरह एक चीज जीएनएच है, और जीएनएच को इंट्रोड्यूस करने का सेहरा भूटान के बादशाह के सर है। ये 1972 की बात है, जब उस शख्स ने पहली दफा ये कहा कि हम मालो जर से दुनिया में खुशी और इत्मीनान का लेवल नहीं नाप सकते, हमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसका एक इंडेक्स बनाना चाहिए। वाह। तो एवर सिंस देन जीएनएच पे लोगों ने काम किया, और बड़े मुख्तलिफ ममालिक हैं, इवन पाकिस्तान बड़े अच्छी पोजीशन पर है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के हवाले से। अच्छा, यहां के कौमी खेल बहुत दिलचस्प है। आप हैरान होंगे कि डार्ट्स नहीं होते, डार्ट्स इनका कौमी खेल है, और आर्चरी, तीर अंदाजी, यहां की करेंसी है नगोल्ट्रम, जिसे नगोल्ट्रम भी कहते हैं। ये तकरीबन 1.5 रुपए की एक है। सड़कों पे आज तक निगलता भी नहीं का। यहां का लिबास भी बड़ा दिलचस्प है, कीरा बड़ी दीदा जेब नफीस धोती को कहते हैं, ये उनका कौमी लिबास है। ये सिर्फ धोती पांदे ने सर, उत्ते कुछ नहीं पांदे, जिडे गरीब लग रहे ने। नहीं यार, उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं। तो शर्ट नु भी कीरा ही कहते ने। थिम्पू की एक खास बात यह है कि यहाँ पर सिगरेट पीना इंतहाई मायूब समझा जाता है। वो गरीब ही एडे ने, उन्हें लेने कितों ने, जिन्हें था कौमी लिबास धोती है। यार धोती को तुम मजाक समझते हो? नहीं सर, पंजाब की पहचान है धोती। तुम तसव्वुर करो आड़ू कितना प्यारा लगे धोती में। हैं? सर इन्हें तो धोती भी बहुत लगनी है। सर ये तो ऐसे खाम मैं अक्सर बांधता हूँ, रात को सोते ही जी, धोती पहन के सोते। आप सो ही धोती में सकते हैं। सर तंबू जिड़ी तो धोती है।
और ਇਹਦੀ ਧੋਤੀ ਨਾਲ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। जिन लोगों को आदत है ना जी सोने से पहले धोती बांधने की, वो सो नहीं सकते। अच्छा, सोने से पहले ही पहन, सोने के बाद कभी नहीं पहनी? नहीं, अक्सर होता है कि आप ये क्यों नहीं कहते कि सोते वक्त, सोने से पहले, यानी आप सारी रात जागते रहे? और इधर देखो, मैं 3 पीस सूट टाई बल्कि उत्ते बो भी ला लेना चाहूँ। जान छड़ते हो? ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫਲ ਗੱਚਕ ਹੋਏਗਾ। तुम गचक को मजाक समझते हो? अल्लाह। गचक दुनिया के इंतहाई शानदार आइसक्रीम फ्लेवर्स में से एक है, जिसको कैरामेल कहते हैं। अगर इन्हों कैरामेल ना कहिए ना तुम जिसे गरीब मुल्क कह रहे हो, इसकी एक और पहचान है, इसका कल्चर है, एक रिवायत है जो तुम्हारे यहाँ नहीं है। हर आने वाले सयाह से मांगते हैं, नहीं यार, मांगते नहीं है, जब वो जा रहा होता है फिर मांगते हैं। उसे तोहफा देते हैं। ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ? ਇੱਕ ਗੱਚਕ ਦੀ ਪੁੜੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲੀ ਜੀ ਧੋਤੀ। हाँ यार, धोती बड़ी शान। मैं कह रहा हूँ, मुझे चंद दिन पहले एक दोस्त ने बांग्लादेश से धोती भेजी है, बहुत शानदार धोती। और बन के मच्छी फड़ दे। थिम्पू दुनिया का वाहिद कैपिटल है जहां ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। मैं क्या कहने लगे, थिंकू दुनिया का वाहिद मुल्क है जिथे आज तक किसी ने जूस नहीं पीता। कितना गरीब मुल्क होएगा जिन्हें को ट्रैफिक सिग्नल लवाने जो के पैसे नहीं। यार तुम अजीब बात कर रहे हो। नॉर्थ कोरिया का एक शहर है नॉमपेन, हाँ जी, वहां भी यही हाल है, और इससे पता चलता है वो कितने मुहज्जब और तेज रफ्तार है। कितना गरीब मुल्क होगा। वो उन्होंने बादशाह ने हुण मोबाइल लिया और सिर्फ मोबाइल लिया है, जो सिम नहीं ली। अच्छा जी, पहली दफा इस मुल्क में इंटरनेट 1999 में इस्तेमाल किया गया। तुम दसिया नहीं? इसका क्या मतलब? सर महंगा होता है ना। क्या इंटरनेट? हाँ जी, वो भी पूरे मुल्क ने पैसे पा के लिया है। पूरी दुनिया ते 4G चलता है, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ 1G ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, और वेख के कह रहे यार बड़ा तेज चल रहा है। यहां पर एक और बड़ी रिवायत रासख है कि ये घर दामाद रखना पसंद करते हैं। दूसरी इन्हों को धोती नहीं है, घर दमाद रखन टुर पे। दमाद ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ तो ਉੱਥੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। आईनी तौर पर हर शख्स की जिम्मेदारी है माहौलियात का ख्याल रखना। ये ऐसा मुल्क है जहां पर प्लास्टिक बैग्स बैन हैं। शॉपर बैग, शॉपर बैग नहीं, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ शॉपर्स बैग। शॉपर्स। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵੀਆਂ ਬੂੜੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। पर चीज तो खरीदते कोई नहीं, गच्चक भी वो पत्ते ते रख के देंदे ने। अगर वैसे पत्ते पर एक बड़ी शानदार चीज बिका करती थी, मलाई की बर्फ। कभी सुनी है? ये बहावलपुर में, मुल्तान में बड़ी आम, और पत्ता होता है केले का, केले उसके ऊपर बड़ी मजे की चीज होती थी, बचपन में खाते थे। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। दुनिया में जितने ममालिक हैं उनमें आखिरी मुल्क ये था भूटान, जहां टेलीविजन इंट्रोड्यूस किया गया। अकवामे मुत्तहिदा को इमदाद लेके उन्होंने एक टीवी सेट लिया और अजे केबल लवाने के उन्होंने को पैसे नहीं। इसे वजह तो इस मुल्क का लू लू कर्जे च जकड़िया सर। टीवी इन्होंने कर्जे ना लिया, फ्रिज इन्होंने कर्जे ना लिया, धोती इन्होंने कर्जे ना। अब आइए यहाँ के खाबों की तरफ। हाँ जी, इन्हों का सब तो मशहूर खाबा है बेर, फिर शकरकंदी। उत्थे तो किसी को 5 का नोट निकल आया ना, वो बादशाह नूं कह रहा था मैनूं सिक्योरिटी दे। यहाँ की मेन डिश है ईमा दातशी। ये याक एक जानवर होता है ना, ये उहदे कोल लैंदे ने। हाँ उसी से लेते हैं। पनीर होता है याक का या गाय का पनीर। उसमें बहुत से मसाले डालते हैं, सब्ज मिर्चें डालते हैं, काली मिर्चें डालते हैं, उसको बड़ा स्पाइसी करके कीमे में पकाते हैं और बड़ी मजे की डिश बनती है। फिर है मोमोज। यूं समझो कि गोल सा समोसा है। गल वही आ गई ना फिर। कीमे दा सिर्फ एक बार जिक्र है, हुण सारा साल समोसे दा ही होएगा। ये तकरीबन वही चीज है, कीमे में डालकर पनीर, इन सबको एक बंद नुमा चीज में बंद कर दिया जाता है और फिर कितने गरीब ने उनको रोटी भी नहीं, वो बंद च पाउंदे। फिर है जनाब जाशा मारू।
जय शाह मारू। इसमें चिकन के पीसेस लेकर उन्हें बहुत बारीक क्यूब्स में, बहुत छोटे छोटे यानी मटर के दाने जितने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जाता है। और हर एक नु पूरे महल्ले च एक लभदा है यार प्लीज, और वो क्यूब खुर्द भी ना वेखदा। और अगले दिन बादशाह पूछ रहा था तेरा बच्चा कितना है भाई। ये पैन में डालकर इसको चम्मच हिलाते जाते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में एक पेस्ट बन जाता है। आउंज पूरा नहीं ना होता। Continuous Rap will take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि सियालकोट में जाली मजदूर बनकर भीख मांगने वाला जोड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ गया, रिश्वत की पेशकश। अच्छा जी, ये सियालकोट कैंट में बड़ा मशहूर घंटा घर चौक है। वहां पर एक अरसे से इन्होंने जलालत का बाजार गर्म कर रखा था। ये झूठे जालसाज लोग हैं, इनके बेशुमार जराइम में मुलव्वस होने के भी इम्कानात हैं, जिसमें बर्दा फरोशी भी शामिल है, डकैती तक शामिल है। लेकिन जब ये पकड़े जाते हैं तो फौरन इनकी जमानत हो जाती है। ये किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, वहां भी यही धंधा जारी रखते हैं। 4-5 महीने वहां पे काम किया, बात आई गई होगी, वापस फिर अपने अड्डे पे आ जाते हैं। तो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका खाना खराब हो जाए। बाबू जी तो तुम वही हो सियालकोट वाले? हाँ जी। तो यहाँ कैसे आ गए हो? मेरे एक चीज जमानत भी हुंदी आ। हाय, जमानत अगले दिन जमानत होगी। ओ जी वकील चंगा होवे ते जमानत रुकदी ही नहीं। तो तुमने वकील अच्छा कर लिया था। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਕੀਲ वकील ਜੀ। ਵੇ ਉੱਠੋ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਕੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ। 2 ਧਨੀਏ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰੱਖ ਕੇ 3 टमाटर रख के सब्जी वाली बनी बैठी आ। अच्छा, अब लाहौर कितनी देर क्याम का इरादा है? बाबू जलों तक फड़े ना जाइए। और अगर पकड़े गए फिर? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। वो तो अब भी लग रहे हो तुम। वैसे ही जरा बेगैरती टपक रही है तुम्हारे चेहरे से, क्योंकि तुम मांगने लगे हो। इससे तो अच्छा तो सिर्फ बदमाशी करते रहते। ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਬਦਮਾਸ਼ ਤੜੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ। तो अगर ना दे कोई? ਨਾ ਦਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਵੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵੇ ਨੈਬ ਵਾਲਾ। लगे? ਨੈਬ ਵਾਲਾ। अच्छा, बड़ा सियासी सा फकीर है। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਵੇਖੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲੱਗਦੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਨੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ। हाँ, अल्लाह दे नाम ते दे बाबा। ਇਹ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਬਾਬਾ। अल्लाह दे नाम ते दे बाबा। ਇਹ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਬਾਬਾ। अल्लाह दे नाम ते दे बाबा। ਇੱਕ ਲਾਲ ਲੋਟ ਤੇ ਦੇ ਬਾਬਾ। हाँ हाँ हाँ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਓ ਬਾਬੂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ ਬਾਬੂ। ਠੀਕ। हाँ हाँ। वाह वाह वाह। ਸਲਾਮ ਜੀ। वैसा तुम्हारा हमला किधर है? ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। किसको? ਭੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਭੱਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਭੱਲਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਚੋਰ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਸਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡੀਸੀਓ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਰਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਓਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਓਏ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਐਸੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, 15-15 ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। एक दिहाड़ी 15,000 की? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ 30 ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਠੋ ਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਣੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ। ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਰ ਜੀ ਅਏ ਨੀਫ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ। ਨੀਫ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਹੈ? ਅਨੀਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਜੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਓਏ ਖਬਰੇ
ਫੋਨ ਤੂੰ ਕਿਧਰ? ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਧੋਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ। वो तुम्हारी उम्र की वजह से चचा कह रही है। नहीं, उम्र की वजह से नहीं, आपके वजन की वजह से कह रही है। ਸਬਰ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਉਹ ਆ। ਖੈਰ ਜੇ ਬਿੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ए साडा रोज दा कुतखाना। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਆਕੜੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਕਿੱਡੀ ਆਕੜੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁੱਤ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੂ। मैं क्या SHO साहब, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਡੀਲ? ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਧਰ ਫਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੋਲੇ 'ਚ? ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ? बात सुनो, परमानेंट डील क्या रिश्वत ऑफर कर रहे हो? ਏ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। देखो तजुर्बा बोल रहा है। देखो ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗਨੇ? ਏ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਦਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦਾ ਫਾੜੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾੜੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ? ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ? ਆਲੂ ਲੈ, ਗੋਭੀ ਲੈ, ਮਟਰ ਲੈ, ਟਿੰਡੇ ਲੈ, ਅਦਰਕ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਨੀਫ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਟੀਰਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਨੀਲਾ ਨੋਟ ਲੈਣਾ, ਨੀਲਾ ਨੋਟ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਨੀਲਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਟੀਰਾ ਨੋਟ। ਦੀਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੀਫ ਦਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਖਾਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਫੱਟੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਖਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨੀਫ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੋ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਨੀਫ ਕੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਦੱਸੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। और बात सुनो हनीफ ਜੀ और तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਢੀ ਰਹੇ। ਅੰਨੀ ਦੇ लो जी, यकीन करो, छन्ना गोली वांगू गया ये। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਟੀਲ ਦੇ ਛੰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। नीब साहब, ਹਾਂਜੀ खालिद जी ने 1-5 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੋ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਓ ਚੁੱਕੋ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੁੱਕੋ ਚਲੋ। ਹਲੋ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸੋਮੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਫ, ਹਾਂਜੀ ਐਸ ਫਕੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਨ ਬੁਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਨੀਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇ ਜੀ। ਓਏ ਅਰੇ ਪਰੇ ਹਟ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮੱਝ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ वैसे ठीक कह रहा है, जिस किस्म के बेशरम बेतुके और डिसऑर्गेनाइज्ड पुलिस वाले हो, तुमसे ज्यादा काम कर रही है। ਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਕਮਾਲ। ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। तुम्हें पता ही नहीं चलता कौन क्या है कि इसकी आंख का इलाज करो। ਕਿਹਦੀ? ये जो है साथ ਇਹ ਟੀਰਾ। ਡੈਡੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। SHO ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਥਾਣੇ। ਓਏ ਉਰਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਆ ਡੈਡੀ ਉਧਰ ਚੱਲ। ਜੀ ਜੀ। ਓਏ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਓਏ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਹਨੀਫ ਜੀ। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा था, अभी तक इसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ਉਧਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ 900 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ ਚਾਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਂ ਦੱਸ। ਹਨੀਫ ਜੀ। ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਬਸ਼ੀਰ ਜੀ। ਨੀਫੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਜਣਾ ਬੋਲੀ ਕੀ ਨਾਂ? ਹਨੀਫ ਜੀ। ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ? ਬਸ਼ੀਰ ਜੀ। ਉਹ 900 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨੀਫ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਸ਼ੀਰ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਟੀਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ
ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਵਾਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ इधर हटो तू पहले मेनू अच्छी तरह चाचा कह ला कहा कि तू बार कह ला 15,000 बारी चाचा कह ला तेरी तमा पूरी हो जाए ਵੇ! इधर इसे क्या हो गया सकता में ਖਾਲਾ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ नहीं पुत्र ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਜੀ ਓਏ ਇੱਧਰ ਦੇ। ਓਏ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਓਏ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਰਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ